بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھتے ہیں۔ اگلے سبق میں سب سے پہلے ہم سوالات قرآن سے متعلق پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیں، قرآن کریم میں جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام جانوروں کے نام پر ہیں۔ اور وہ کل کتنی صورتیں ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ نے مجھے ٹائپ کر کے بتانا ہے۔ ایسے نہیں، جب ہم جواب پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے، جب میں کہوں تو اس ٹائم آپ نے بتانا ہے۔ ایسے میرے کہنے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے لکھ دیتے ہیں تو آپ کی توجہ نہیں رہتی پھر سبق کی طرف۔ ٹھیک ہے، جواب دیکھیں، قرآن کریم میں جانوروں کے نام پر 5 صورتیں ہیں۔ اب بتائیں کتنی صورتیں ہیں؟ شاباش، 5 صورتیں ہیں، 5 سورہ۔ اگلا سوال دیکھیں، وہ صورتیں کون کون سی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی کہ کون کون سے جانوروں کے نام پر وہ صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلی صورت دیکھیں، سورۃ البقرہ۔ جی، بقرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب لکھ کے بتائیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، کاؤ۔ کاؤ بولتے ہیں نا، اس کے لیے سی لکھ دیں صرف۔ شاباش، سب سے پہلے لکھا ہے حاجرہ نے آج بھی۔ اب دوسری صورت، سورۃ نحل۔ سورۃ النحل، نحل بولتے ہیں شہد کی مکھی۔ نحل کس کو بولتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ تو پہلی صورت جو جانوروں کے نام پر ہے وہ ہے بقرہ، اور دوسری صورت سورۃ نحل، جو ہے کہ شہد کی مکھی جس کا معنی ہے، اور تیسری دیکھیں سورۃ النمل۔ نمل بولتے ہیں چیونٹی کو، اور چوتھی صورت سورۃ عنکبوت۔ عنکبوت بولتے ہیں مکڑی۔ ٹھیک ہے، آخری دیکھیں پانچویں صورت، صورت فیل۔ صورت فیل، فیل کا کیا معنی ہے؟ ہاتھی۔ ہاتھی کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ویری گڈ، ابھی بھی حاجرہ نے بتایا ایلیفینٹ۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ایسی صورتیں ہیں قرآن پاک میں جو کہ جانوروں کے نام پر اللہ نے نازل کی ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، اشرا مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ اشرا مبشرہ کا کیا مطلب ہے؟ اب اشرا مبشرہ کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے۔ ایسے 10 صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھے ایک ہی مجلس میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت یعنی خوشخبری سنائی۔ وہ 10 صحابہ ایک ہی سیٹنگ میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ سارے جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے 10 صحابہ اشرا مبشرہ کہتے ہیں۔ اشرا مین 10، مبشرہ مین جن کو خوشخبری دی اللہ کے نبی نے۔ صحیح ہے، اب وہ 10 صحابہ کون کون سے ہیں؟ ان کے ابھی آپ نے نام پڑھنے ہیں، اور ان کو یاد آپ نے بعد میں کرنا ہے ہوم ورک میں، جب آپ نے پڑھنی ہے اس سلائیڈ کو تو اس وقت آپ نے یاد کرنے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ آپ نے دہراتے جانا ہے دل میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب صحابہ کو یہ فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بس یہ یاد کرنا ہے کہ عشرہ مبشرہ کیا ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے 10 صحابی بھی ہیں
जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दुनिया में एक ही मजलिस में बैठ के जन्नत की बिशारत खुशखबरी सुनाई थी। बाद में आपने इनके नाम भी याद कर लेने। अगला सवाल देखें। अल्लाह ताला ने कौन सी सूरत में दो समंदरों के मिलने का जिक्र फरमाया कि दो समंदर आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन मिलने के बाद मिक्सअप नहीं होते? बताएं वो कौन सी सूरत है? सूरतुर रहमान, शाबाश, वेरी गुड। सूरतुर रहमान। इस सूरत में आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो समंदर आपस में मिलते हैं। अब ये अगला सवाल देखें, ये दो समंदर जो आपस में मिल रहे हैं ये कौन से मुल्क में मिलते हैं, यानी कि कौन से मुल्क में जाकर ये दोनों समंदर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं? अब ये इसका आंसर देखें। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है? जनूबी अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये दोनों समंदर आपस में मिल रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल देखें, आखिरी सवाल। इन दोनों समंदरों की खास बात क्या है? यानी कि क्या है, आपस में मिल रहे हैं तो इतनी खास बात क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान में आयत बनाकर इसको हमें बताया है? देखिए, इसमें खास बात यह है कि इनमें मीठा पानी कड़वे पानी में और कड़वा पानी मीठे पानी में शामिल नहीं होता। यानी कि एक साथ बह रहे हैं, दरमियान में कोई बार भी नहीं है, लेकिन फिर भी मिक्सअप नहीं होते, साथ साथ बह रहे हैं। मीठा पानी कड़वे पानी में शामिल नहीं होता और कड़वा पानी मीठे पानी में शामिल नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी एक निशानी थी जिसको अल्लाह ने दिखाना था लोगों को, अल्लाह ने दिखाया, और कुरान में भी अल्लाह ने इसको बयान फरमाया कि ये आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते। सही है। हम हदीस पढ़ रहे थे, तो ये हदीस और उसका तर्जमा हमने याद कर लिया, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम। आज हमने अगली हदीस पढ़नी है। आज हम सिर्फ हदीस को याद करेंगे और उसका तर्जमा अगली क्लास में याद करेंगे हम इंशाअल्लाह। हदीस आपने साथ साथ पढ़नी है। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन। इसका मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ, याद आपने कल करना है। अभी आपने सिर्फ इस हदीस का जो अरबी वाला मतन है, या इसकी जो अरबी है, या ये जो हदीस है, आपने इसके अल्फाज याद करने हैं, इसका तर्जुमा आपने अगली क्लास में याद करना है। इसका तर्जुमा वैसे है क्या, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चुगलखोर जो लोगों की चुगलियां करता है, चुगलियां खाता है, शिकायतें लगाता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब देखें, इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगली खाने से मना किया है, और ये फरमाया है कि अगर आप हर बंदे की चुगलियां करते रहेंगे, चाहे आपके क्लास फेलोज हों, दोस्त हों, बहन हो, भाई हों, तो एक दूसरे की अगर आप चुगलियां खाएंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे फिर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जन्नत में जाएं तो क्या करना होगा? ये जो चुगली वाली आदत है इसको ख़त्म करना होगा। कौन कौन चाहता है कि वो जन्नत में जाए, जल्दी से बताएं। शाबाश, सारे चाहते हैं कि वो जन्नत में जाए, माशाल्लाह। तो फिर करना क्या है? कौन कौन आज के बाद चुगली नहीं खाएगा या चुगली नहीं करेगा, चुगली नहीं लगाएगा? बताएं, कौन आज के बाद चुगली बिल्कुल ख़त्म कर देगा? पता है ना चुगली क्या होती है? चुगलखोर किसको कहते हैं? चुगलखोरी करना जिसको बोलते हैं हम अपने उर्दू में, चुगलखोरी। बिल्कुल चुगलखोरी नहीं करनी किसी की भी। अगर आप चुगलखोरी करेंगे तो जन्नत में नहीं जा सकेंगे, चुगलखोरी छोड़ देंगे तो फिर जन्नत में जाएंगे। इसलिए क्योंकि हम सारे चाहते हैं हम जन्नत में जाएं, और जन्नत में जाना हम सब ने इंशाल्लाह ज़रूरी है, तो इसलिए हमें ये इसको छोड़ना पड़ेगा, चुगलखोरी को। हम खाने के आदाब पढ़ रहे थे।
अब खाने के आदाब हमने पहले पढ़ लिए थे। अब मज़ीद हम पढ़ते हैं कुछ आदाब। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि खाने से पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, दस्तरखान ज़मीन पर बिछा कर खाना खाना चाहिए, इकट्ठे मिल बैठ कर खाना चाहिए, खाना शुरू करने की दुआ पढ़ के शुरू करना चाहिए, और अगर शुरू में भूल जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लेनी चाहिए, और दाएं हाथ से खाना चाहिए। आज हमने मज़ीद उसमें पढ़ना है, टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं तो आपको टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको चाहिए तो ये कि ज़मीन पर बैठ कर खाएं। लेकिन अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते किसी वजह से, तो आप कुर्सी पर बैठ लें। लेकिन आपने क्या करना है, आगे हम पढ़ेंगे, एक तो जूता उतार कर खाना है, और दूसरा कुर्सी के टेक नहीं लगाना। सही है। कोशिश करनी है ज़मीन पर बैठ कर खाएं, और टेक लगा कर नहीं खाना चाहिए। आगे देखें, खाना सामने से खाना चाहिए। अगर खाना मुख्तलिफ किस्म का हो तो दूसरे के आगे से खा सकते हैं। अब अपनी मम्मा के साथ प्लेट में खा रहे हैं, बाबा के साथ खा रहे हैं, या जिसके साथ भी खा रहे हैं खाना, तो करना क्या है, आपने अपने आगे से खाना है। आप देखेंगे जहाँ पर आप बैठे हैं तो आपकी फ्रंट साइड जो भी होगी, सिर्फ उधर से खाना खाएंगे, साइड से बिल्कुल भी नहीं खाएंगे खाना। हाँ, अगर आपने देखा ऐसा है कि आपके सामने जो प्लेट पड़ी है उसमें फ्रूट्स पड़े हैं, और मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपके सामने अगर कोई फ्रूट नहीं पड़ा, दूसरे के सामने वो पड़ा है, तो आप आराम से तमीज़ से वो उठाकर खा सकते हैं। लेकिन अगर सब पूरी प्लेट में एक जैसे फ्रूट हैं, तो फिर आपने ये नहीं करना कि आप अपने बजाय किसी और के आगे से खाएं। ऐसे ही अगर आप सालन खा रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आगे से खाएं, किसी और के आगे से ना खाएं। और चावल खा रहे हैं तो वो भी अपने आगे से खाएं, किसी और के आगे से ना खाएं। अगर खाना मुख्तलिफ किस्म का हो, यानी कि आपके सामने कुछ और रखा हुआ हो, किसी के सामने कुछ और रखा हो, तो फिर किसी और के आगे से खाना हो तो आराम से, सलीके से, अदब से आप उठाकर खा सकते हैं। और अगर इस उठाते हुए खाते हुए कोई लुक्मा हाथ से, यानी कि कोई बाइट आपके हाथ से नीचे गिर जाए, तो उसे उठाकर साफ करके खा लेना चाहिए। हमने पढ़ा है ना कि शैतान हमारे साथ खाना खा रहा होता है, तो वो बाज़ औक़ात हमसे कुछ छीनने की कोशिश करता है, तो वो ज़मीन पर गिर जाता है। जब ज़मीन पर गिरता है तो शैतान खुश हो जाता है कि अब तो गिर गया है, इसने तो खाना ही नहीं, तो ये मैं खा लूँगा। तो वो शैतान उठाकर खा लेता है। जब शैतान खाना खाता है तो उसको पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। उसी एनर्जी को यूज़ करता है, फिर वो हमारे खिलाफ हमें अच्छे काम नहीं करने देता और हमें तंग करता है। और फिर हम हमें तंग करता रहता है। जब हम उसको खाना अपने साथ नहीं खाने देंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे, और नीचे गिर भी जाएगा खाना, तो उसको उठा कर खा लेंगे, तो फिर तो उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो फिर वो हमें इतना तंग भी नहीं करेगा। और जब आपका वो जो बाइट नीचे गिर गई है, अगर नीचे दस्तरखान बिछा हुआ है तो फिर उसको उठाकर खा लें। अगर नीचे दस्तरखान नहीं और ज़मीन पर गिर गया है और ख़राब जगह पर गिर गया है, तो फिर क्या करना है, उसको ना खाएं तो फिर ये सही है, अच्छी बात है। क्योंकि जो सारा मट्टी से ख़राब हो गया, और मट्टी के अलावा या किसी और जगह पर ऐसा ख़राब हो गया, तो फिर उसे ना उठाएं तो फिर सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर दस्तरखान है तो फिर उठाकर लाजमी खा लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि दस्तरखान बिछा कर खाएं, कि कोई भी बाइट आपकी गिर भी जाए तो फिर भी वेस्ट ना हो वो। अगर खाने के दौरान कोई आ जाए तो उसे भी दावत देनी चाहिए। आप खाना खा रहे थे, आपके फ्रेंड आ गए, आपकी सिस्टर, भाई, या मम्मा पापा, कोई भी आ गया है, तो आपने क्या करना है, उनको भी इनवाइट करना है। उनको भी कहना है कि आप भी आ जाएं और हमारे साथ खाना खा लें। जूता उतार कर खाना चाहिए, जूते पहन कर खाना नहीं चाहिए। जूते पहन कर खाना खाना बहुत बुरी बात है, इसलिए जूते हमेशा उतार कर खाना खाना चाहिए। आगे खाने में कोई ऐब नहीं निकालना चाहिए। आप खाना खा रहे थे, आपको खाना पसंद नहीं, तो आप इस तरह कह सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि मेरा दिल नहीं कर रहा ये चीज़ खाने को, सब्ज़ी खाने को, चावल खाने को, कोई और खाना बना दें। ऐसा ना कहें कि इतने ये चावल तो बुरे होते हैं, सब्ज़ी तो बुरी होती है, सब्ज़ी तो इंसान नहीं खाते, बहुत बुरी बात है ऐसा। ऐब नहीं निकालते।
اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس طرح کہیں نا کہ مجھے پسند نہیں یا میرا دل نہیں کر رہا، اس کھانے کو برا بالکل بھی نہیں کہنا۔ اگر کوئی کھانے کو برا کہتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ ہمیں وہ والا کھانا بھی نیکسٹ ٹائم میں نہ دیں۔ اس لیے کھانے کو ہم برا نہیں کہیں گے، کھانے میں کوئی بھی عیب یعنی کہ برائی ہم نہیں نکالیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو اتنا برا ہے، یہ سبزی اتنی بری ہے، یہ دال ایسی بری ہے ہم تو نہیں کھاتے دال۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے میں پھونک نہیں مارنی چاہیے اور کھانے کو سونگھنا بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ چائے ہے یا کوئی ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی سالن ہے، وہ گرم ہوتا ہے تو ہم پھونک مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی کھانا ہو اس میں پھونک نہیں مارنی چاہیے اور اس کو سونگھنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو سونگتے ہیں کہ یہ خراب تو نہیں ہو گیا، تو سونگ کر ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کھانے کو سونگھنا بھی نہیں چاہیے اور اس میں پھونک بھی نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پھونک مارتے ہوئے ہمارے منہ کی اسمیل وہ اس میں چلی جاتی ہے، تو اس کے علاوہ پھر کوئی بھی شخص اس کو کھانا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں تو اس نے پھونک ماری ہے، اس کی اس ہو سکتا ہے کہ پھونک کی وجہ سے اس میں تھوک چلی گئی ہو یا اس کے جو منہ کے جراثیم تھے وہ چلے گئے ہوں، اس وجہ سے وہ اس کو کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کئی سوال پڑھ لیے تھے، آج کا جو سوال ہے وہ کل والے سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے بتانا ہے کیا آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے؟ اب اس خدمت سے مراد وہی ہے کہ پاؤں دبانا بھی اس میں آ گئے، اور ان کو پانی کا گلاس دینا بھی آ گیا، اور ان کے جو جوتے صاف کرنے ہیں وہ بھی اس میں آ گیا، اور جو والدین آپ کے پیرنٹس، آپ کی مما یا آپ کے بابا باہر سے جاب کر کے گھر آتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کھانا لا دوں، پانی لا دوں، جو بھی ہو یہ سارا اس میں آتا ہے۔ جس کسی نے بھی کوئی آپ نے ماما بابا کی ہیلپ کی ہو یا خدمت کی ہو تو اس نے بتانا ہے۔ ابھی کس کس نے آج کے دن میں ہیلپ کی تھی وہ یس لکھ دے۔ شاباش، بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماما کی ہیلپ کی تھی۔ یہ تو ہم نے اس کے علاوہ ہم پڑھ رہے تھے دعائیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی، کون بتائے گا مجھے؟ جلدی سے بتائیں ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی تاکہ پھر میں… کھانا کھانے کی، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور پڑھی تھی دعا؟ کھانے کے بعد والی آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ہم نے کھانا شروع کرنے کی اور کھانے کے درمیان کی یہ دعائیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے کھانے کے آخر والی دعا۔ دیکھیں وہ کون سی ہے کھانے کے بعد کی دعا؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ پھر سے پڑھیں، ساتھ ساتھ پڑھیں آپ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ٹھیک ہے، یہ دعا آپ سب نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ اس کو پریکٹیکلی پڑھنا بھی ہے۔ جب بھی واش روم میں جائیں تو واش روم والی پڑھنی ہے، واش روم سے باہر ہیں تو وہ والی دعا پڑھنی ہے، سونے لگے ہیں تو سونے کی دعا پڑھنی ہے، اٹھنے لگے ہیں تو اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب کھانا شروع کریں تو کھانا شروع کرنے کی دعا پڑھنی ہے، اور کھانے کے بعد والی وہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ ہم یاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعائیں پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ کون کون یہ دعا پڑھے گا اور کس کس نے آج دعا پڑھی تھی یہ والی پریکٹیکلی، وہ جلدی سے بتائیں۔ پہلے وہ بتا دیں کہ جس نے آج پڑھی تھی دعا کھانے کے بعد والی۔ شاباش، ویری گڈ، بہت اچھا۔ اس کا مطلب موسٹلی اسٹوڈنٹ پہلے ہی یہ دعا پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ شاباش،
वेरी गुड। इसका मतलब सारे स्टूडेंट ने ये दुआ पढ़ी थी। हमने ये वज़ू और गुस्ल की हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? कौन बताएगा मुझे? लगता है किसी को याद नहीं है, मुझे खुद बताना पड़ेगा। ये सुन्नतें, अहमद ने एस लिख दिया, इसका मतलब सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें। वेरी गुड। भतीजा ने भी बता दिया। अभी हमने अगला सबक पढ़ना है, देखें शाबाश। इसका मतलब सबको याद है। अगला है हमारा आज का सबक, क्या गुस्ल कर लेने से या शॉवर ले लेने से वज़ू हो जाता है या नहीं होता? ये आज का हमारा सवाल है, क्वेश्चन है। कोई अगर आपसे पूछे कि मैंने अभी आप शावर लिया है लेकिन वज़ू नहीं किया, तो क्या मैं कुरान पाक पढ़ सकता हूँ? क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ? तो आपने उसको क्या कहना है कि शावर लेने के बाद वज़ू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब जवाब देखें। जी हाँ, गुस्ल करने से वज़ू हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या गुस्ल कर लेने से वज़ू हो जाता है? जवाब दें मुझे सारे साथी, सारे स्टूडेंट जवाब दें। वज़ू हो जाता है या नहीं होता? फिर इसकी मैं रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि क्यों हो जाता है, हमने तो वज़ू किया भी नहीं है, सिर्फ शावर लिया है, तो शावर लेने से वज़ू कैसे हो जाएगा? हम जवाब देंगे, क्योंकि जिस्म पर पानी बहाने से वज़ू के चारों फ़राइज़, कौन कौन से फ़र्ज थे? मुंह धोना, बाजू धोना, मसा करना, पाँव धोना अदा हो जाते हैं। यानी कि जब हम पूरी बॉडी पर पानी बहाते हैं तो वज़ू के जो भी चार फ़र्ज थे, कौन से चार? मुंह धोना, बाजू धोना, सर का मसा करना, पाँव धोना, ये सारे के सारे धुल जाते हैं। लिहाजा गुस्ल कर लेने के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्ल कर लेने के बाद वज़ू नहीं फरमाया करते थे। हदीस मुबारक देखें। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ला यतवज़्ज़उ बादल गुस्ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे। ठीक है, गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे। इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे। इसलिए अगर आप में से किसी ने शावर ले लिया तो उसके बाद वो नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान पाक भी पढ़ सकता है, दोबारा से वज़ू कर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वेरी गुड। ये भी हमारी ख़त्म हो गई है वज़ू और गुस्ल की स्लाइड्स। अब इंशाल्लाह हम सीरत की स्लाइड शुरू करेंगे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कोर्स में शामिल था कि किसी एक नबी के वाक़ये को पढ़ना। तो उस एक नबी के वाक़ये में हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो 4 से 5 दिन हैं, जितने भी हैं, इसमें हम अपने नबी के बारे में कुछ सवालात पढ़ेंगे कि वो पैदा कब हुए थे, उनका नाम किसने रखा था, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, उनके वालिद का नाम क्या था, उनके दादा अब्बू का नाम क्या था, और उनकी वालिदा और वालिद और चाचा, उनके बारे में हम कुछ न कुछ पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई। मैं आपके माइक ऑन कर लेता हूँ, आपने किसी ने सवाल करना है तो वो कर सकता है।